Hello, good morning students. So today we are going to start the remaining examples of maxima and minima. Yesterday we will take some examples that are some are numerical based and some are word based, means verbal based. But today the total examples are on word based examples, on verbal based examples. So that one is very important as a point of CET examination and board examination. Okay, so same exercise 2.4 exercise of the topic applications of derivative. Example number 12. So this is a word example. So read the content and the given data. A wire of length 36 meter is bent. 36 meter का एक वायर है, उसे बेंड करना है to form a rectangle. Rectangle means what? Whose four sides, length and breadth, is bent to form a rectangle. Find its dimensions. Dimensions means what? We have to find the length of rectangle and the breadth of rectangle. If the area of rectangle is maximum. So this last line is very important. So what is the area of the rectangle is maximum. So this is the function. Example में जो भी given maximum और minimum दिया है उसी को हमको function consider करना है या f of x consider करना है. So let us write the dimensions of rectangle. So देखो word example कैसे solve करते हैं. So write let x centimeter and y centimeter. x meter 36 meter है, so meter में लिखेंगे x meter and y meter are the length and breadth of rectangle. Only that what he has given the 36 meter की एक मेटल वायर है, उसको बेंड करके हमें क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है. Means this 36 meter is what? Perimeter of rectangle. So therefore, so ऐसा अगर हमने रेक्टेंगल बनाया, this is rectangle. A 36 meter is given. So therefore, perimeter is equal to 36 meter. That is, perimeter means what? 2 length and 2 breadth. So that is 2x plus 2y is equal to 36. 2 common. X plus y is equal to 18. So therefore y is equal to 18 minus x. This is important. 18 minus x. वहां से 2 कॉमन लिया, is 36 by 2 is 18. So x plus y is equal to 18. Find out what? Y is equal to 18 minus x. So he has given 36 meter is the perimeter of rectangle because वही वायर से हमको क्या बनाना है, रेक्टेंगल फॉर्म करना है. So that total length is what? 36 meter. That is the perimeter. So okay. So now area of rectangle is equal to length into breadth. Area of rectangle is what? Length into breadth. So therefore, f of x is equal to x into 18 minus x. Y replace किया 18 minus x. F is a function of x. That's why y replace करना 18 minus x. So therefore this becomes f of x is equal to 18x minus x square. 18x minus x square. So now यहाँ से हमारा जो प्रोसीजर है, that is the way of working, that is the algorithm, that is find out f dash of x, f double dash of x. So f dash of x, that is 18 minus 2x. The derivative of 18x is 18. The derivative of x square is what? 2x. Immediately find out f double dash of x. 18 का 0 minus 2x का minus 2 which is less than 0. f double dash of x is what? Minus 2 less than 0. area maximum होने दिया है. The area of rectangle is maximum. So here for
maximum area, MI मीन्स मैक्सिमम एरिया. अब मिनिमा तो निकालने की जरूरत ही नहीं बिकॉज डबल डैश ऑफ x इज नेगेटिव आया है. So for maximum area we write f dash of x is equal to what? 0. This is actual first derivative test. F dash of x is equal to 0. So what is f dash of x? This is. So therefore 18 minus 2x is equal to 0, 2x is equal to 18, x is equal to 9. x is equal to what? 9. x की वैल्यू हम दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं. एक ही पॉइंट आया है, हम इसको कहां पर रिप्लेस करते हैं? सेकंड डेरिवेटिव में. दिस इज सेकंड डेरिवेटिव. देयरफॉर एट x is equal to 9, f double dash of 9 which is equal to minus 2, कांस्टेंट फंक्शन है which is less than 0, यहां लिखने की जरूरत नहीं. सो देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम. So our function is what? F of x is equal to area, x into y. X into y is what? x into y means x की वैल्यू 9 आ रही है, so x की वैल्यू 9 यहाँ पर रखिए. Therefore y is equal to 18 minus 9. So y is equal to what? It is also 9. So x is equal to 9, y is equal to 9. जिस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है वो रेक्टेंगल क्या होता है? स्क्वायर होता है. So square का ही एरिया मैक्सिमम होता है. So that's why x is equal to 9 meter and y is equal to 9 meter. That is what we have to find its dimensions. Therefore, length of rectangle, length x is equal to 9 meter. Breadth, that is y is equal to also 9 meter. So this is our आंसर. यही उसका आंसर है. बहुत ही सिंपल है. कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना है. व्हाट आर दैट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल में व्हाट ही हैज गिवन, व्हिच टर्म इज मैक्सिमम और मिनिमम, दैट वी हैव टू कंसीडर एज f of x. सो यहां पर एरिया इज मैक्सिमम दिया है, सो वी हैव टू कंसीडर f of x इज व्हाट? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट. 36 मीटर लेंथ दिया है, वो क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. So perimeter of rectangle means 2 side, 2 length plus 2 breadth is equal to 36. यही उसकी प्रोसीजर है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, वर्ड एग्जांपल will take later on this. So this is the first example of today's. Now second example for the maxima and minima, example number 14. So this is one of the important example of the content maxima and minima. बहुत बड़ा solution है, इसलिए मैं पूरे पहले सॉल्व करके रखा है. सो दैट बिकॉज ऑफ व्हाट आई कैन एक्सप्लेन मोर देन इफेक्टिवली फॉर दिस एग्जांपल. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन. रीड द एग्जांपल फर्स्ट केयरफुली. फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल. लार्जेस्ट साइज मींस एक्चुअल व्हाट? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम. सो हियर दिस इज इंपॉर्टेंट. व्हाट वी हैव टू कंसीडर हियर? फंक्शन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम. लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल मीन्स उस रेक्टेंगल का सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? एरिया ज्यादा होना चाहिए. दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल. उसको किस में इंस्क्राइब करना है? सेमी सर्कल में इंस्क्राइब करना है. ऑफ रेडियस 1 यूनिट. उस सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है? 1 यूनिट है. सो दैट 2 वर्टाइसेस लाइज ऑन द डायमीटर. उस रेक्टेंगल के जो 2 वर्टाइसेस है, 4 वर्टाइसेस होते रेक्टेंगल को, सो 2 वर्टाइसेस डायमीटर पे लाई होना चाहिए, उस पे होना चाहिए. सो दैट इज द गिवन. मींस एक्चुअल व्हाट वी हैव टू फाइंड. सो एग्जांपल मैक्सिमम मिनिमा का है बिकॉज लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड. सो हियर दैट हैज two length and 2 breadth. So length x and y be the breadth of rectangle. So what we have to find? We have to find the dimensions of rectangle. So first पूरा solution मैंने solve करके रखा है. सो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. बाय यूजिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट वी कैन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल. सो दिस इज अ सेमी सर्कल whose center is O. This is the radius, that is 1 unit. ABCD be the rectangle inscribed
in the semicircle whose two vertices lie on the diameter. This is the diameter of rectangle, circle, semicircle. ये दो vertices diameter पे होना चाहिए. So A, B, C, D be the rectangle whose length is AB and whose width is BC. So AB is equal to CD and BC is equal to AD. These are the properties of rectangle. O be the center of semicircle of radius 1 unit. So मैंने ज्वाइन किया, OD ज्वाइन किया, OC ज्वाइन किया, ये हो गया 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट है, because this is a what circle, radius is given. So this becomes a right angle triangle, this becomes a right angle triangle. OBC and OAD be the right angle triangle. So okay, so ये जो सब दिया है मैंने इधर राइट किया है. जो रीड करो, let ABCD be a rectangle inscribed in a semicircle of radius 1 unit. 1 unit means it may be centimeter or meter, so that is the unit, 1 unit. So AB is equal to CD, this is the length of rectangle, opposite sides are equal. BC is equal to AD, that is the width of rectangle, that is Y. O be the center of the semicircle, वो center semicircle का center क्या है? O है. Join OCOD, मैंने OCOD को join किया है. So that is construction, that's why it is a dotted line. OCOD radius है वो 1 unit है. Also AD is equal to BC. AD is equal to BC है. That's why measure of angle AB is equal to measure of angle B. A and B angle 90 है. This is 90 degree and B and at is A. So OA is equal to OB. अब ये that becomes the midpoint of this line segment AB. That's why OA is equal to what? OB. अगर ये x length है तो that becomes what? X by 2. Half divide equally. Which divide equally, that's why it is x by 2. Midpoint बन गए हो. So now OBC is a right angle triangle. OBC be the right angle triangle. So by using Pythagoras, OB square plus BC square is equal to hypotenuse square. X by 2 का whole square plus y square is equal to 1 square. X by 2 whole square plus y square is equal to 1 square. 1. So cross multiply किया, 1 by 4 बाहर लिया, 4 minus x square. So y is equal to 1 by 2 root 4 minus x square. Plus ये y square था, y लिया. So plus or minus होता है, लेकिन y is a length, that is breadth. That's why it is only positive. So y is greater than 0. So y is 1 by 2 root 4 minus x square. This is the width of rectangle. Okay. So important, the largest size of rectangle that can be inscribed. The largest size. Rectangle की size means what? Its area. Area is largest means function is maximum. What is the function? Area of rectangle is largest. Largest means what? It is a maximum. That's why area of rectangle लिया यहाँ पर x into 1. x y है 1 by 2 4 minus x square root 4 minus x square. अब देखो ये x को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया बिकॉज इसके आगे हमें क्या फाइंड करना है, f डैश ऑफ एंड f डबल डैश ऑफ डेरिवेटिव फाइंड करना है. सो u into v से बेटर इसको एक ही फंक्शन बनाएंगे बिकॉज वो x है. x को रूट में इंसर्ट किया तो क्या होता है, x स्क्वायर होता है. 4x square minus x raised to 4 1 by 2. This is our function f of x. यहाँ तक इम्पोर्टेंट है. इसके आगे जो भी है वो डेरिवेटिव का पार्ट है, f dash of x and f double dash of x. But lengthy calculation, so be careful for the derivative. So it's a coefficient. The derivative of root is 1 by 2 root 4x square minus x raised to 4. The derivative of 4x square is 8x. The derivative of x raised to 4 is 4x cube. So it is a 2 into 2, ये 4 हो गया. ऊपर से 4x कॉमन लिया मैंने. अगर 4x कॉमन लिया तो यहाँ बन जाएगा 2, यहाँ बन जाएगा x स्क्वायर. 4x into 2 minus x square, it is numerator. डिनोमिनेटर में 2 into 2 4 था, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लिया, बाहर आके वो x बन गया. It is 4x 4 minus x square. 4x cancel. 2 minus x square divided by root 4 minus x square. This is our f dash of x. थोड़े ध्यान से आप लोगों को डेरिवेटिव फाइंड करना है, f dash of x फाइंड करना है. So it is a skill of calculation. आप किस तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है.
मैंने पहले x अंदर क्यों डाला रूट में, बिकॉज दैट बिकम सिंगल फंक्शन। अगर x इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर बनता तो वी हैव टू सॉल्व बाय u इंटू v रूट, दैट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। दैट्स व्हाई बोथ आर अलजेब्रिक, मेक इट सिंगल, उसको मैंने एक बनाया। बाद में ये डैश ऑफ x बन गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट इज f ऑफ x, इक्वेशन सेकंड इज व्हाट, f डैश ऑफ x। इसके आगे क्या फाइंड करना है, हमारा एल्गोरिथम क्या है, इमीडिएटली फाइंड आउट f डबल डैश ऑफ x। सो f डबल डैश ऑफ x, अब इसको u बाय v है, इसको देख नहीं कर सकते, सॉल्व u बाय v रूल। सो u बाय v रूल इज v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इनटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। यहां पर देखो ये v है, v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, 2 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस 2x माइनस दिस इज अ u इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, माइनस 2x डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, v स्क्वायर। सो केयरफुली कैलकुलेट करना है, डिफरेंशिएट करना है। सो इट्स अ u बाय v रूट। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस 2x इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर कैंसल ओनली 4 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहां पर ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस टर्म गोज टू कॉमन डिनोमिनेटर, नीचे आ जाएगी। रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज बिकम्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस माइनस 2x इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आप न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे, माइनस 8x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x क्यूब, x इंटू 2 इज 2x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस x क्यूब डिवाइडेड बाय this is x into root x is x raised to 3y. 4 minus x square into root 4 minus x square is 4 minus x square raised to 3y. 3y तो कैसे हुआ, 1 plus half is 3y. पूरा ध्यान देखिए, सब देखना है हमें। ये इस आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बहुत सालों से एग्जाम्पल एग्जाम में आता है, बहुत सालों से। मैं समझो हर एक साल में, हर अल्टरनेट साल में एग्जांपल आता ही आता है। द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट सो दैट 2 vertices लाइज ऑन द डायमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब देखो इधर मैटर क्या करता है, कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है। 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 2x माइनस 6x, डिनोमिनेटर सेम 4 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू 3y। गॉट इट? f double dash of x third equation, f dash of x second equation, f of x first equation। पूरा ध्यान से उसको ऑब्जर्वेशन करना है आपको कि कैसे वो f डबल डैश, सिंपल u बाय v रूल है, अलजेब्रिक फंक्शन है। सो नाउ आफ्टर दिस वी राइट फॉर मैक्सिमम एरिया, द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल, दैट्स व्हाई मैक्सिमम एरिया f dash of x is equal to 0। This is our first derivative test, right? So f dash of x ये है, so ये 0 तो नहीं होगा, 0 होगा सिर्फ न्यूमरेटर। 2 minus x square is equal to 0, x square is equal to 2, x की वैल्यू बन गई प्लस और माइनस रूट 2। उसमें सिर्फ हम प्लस रूट 2 ही कंसीडर करेंगे बिकॉज x is a greater than 0, it is a length, that's why we can't take a minus root 2 as value। x की रूट 2 वैल्यू है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो x की वैल्यू है सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, जो आपकी प्रोसीजर है वो फॉलो करना है आपको। सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पर है रूट 2 का क्यूब 2 रूट 2 इंटू 6 माइनस 6 रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2, रूट 2 का स्क्वायर इज 2, 4 माइनस 2 इज 2, 2 रेज़ टू 3 बाय 2 रूट 2 माइनस 6 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2, इट इज a माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2, रूट 2 कैंसिल इज माइनस 2। कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। डबल डैश देखो नेगेटिव आ गया, सो इफ डबल डैश सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, सो बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट f of x is maximum, area is maximum। यहाँ पर लिखा है मैंने area is maximum बिकॉज ऑफ व्हाट, यहाँ पर लिखता है बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट।
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर ये मैक्सिमा मिनिमा का जितने भी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ सब वीडियो आपको डाउनलोड करके देखना है, बिकॉज अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसको जूम करके देख सकते हैं। आप डायरेक्टली लाइव देखोगे तो स्क्रीन जूम नहीं होती। सो दैट्स व्हाई ये आर्टिकल पर्टिकुलर दिस आर्टिकल यू शुड डाउनलोड द वीडियो। नाउ at x is equal to root 2, y becomes y is equal to y breadth of rectangle। y देखो कैलकुलेशन है 1/2 4 minus 2 is root 2 by 2 is root 2 by 2 is 1/√2। रैशनलाइज करो 1/√2 this is breadth root 2 this is length। सो ये हमें फाइंड करना था। So for maximum area of rectangle, length is √2 unit and breadth is 1/√2 unit। So this is the solution। बहुत सिंपल है। So पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया है। So area of rectangle is maximum। So this x into y। एक कंस्ट्रक्शन करना है, सेमी सर्कल है, उस पर इंस्क्राइब करना है रेक्टेंगल। So दो वर्टाइसेस डायमीटर पे होना चाहिए। So दो वर्टाइसेस डेफिनेटली सर्कमफ्रेंस पे होगी। So यही कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। एक बार पूरा कैच करो आप ये सॉल्यूशन। पूरा कैच करने के बाद उसको स्क्रीनशॉट निकाल के रखो। अगर डाउनलोड नहीं करना तो स्क्रीनशॉट निकाल के रखो और उसका पूरा डिटेल आपको रीड करना है। सो ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज ओवर हियर। वी विल टेक मोर एग्जांपल्स। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। This is also the big solution. That's why again I write all details. Now I will explain. Example number 15 from the same exercise. Read the example carefully. An open cylindrical tank whose base is a circle. Open cylindrical tank whose base is circle is to be constructed of metal sheet. एक मेटल शीट से उसको बनाना है, वो ओपन सिलेंड्रिकल टैंक को, उसका बेस कैसा है, सर्कल है। सो एज टू कंटेन अ वॉल्यूम ऑफ पाई ए क्यूब। सो उसका वॉल्यूम कितना है, पाई ए क्यूब। ओपन सिलेंड्रिकल टैंक क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। फाइंड द डायमेंशन सो दैट द डायमेंशंस फाइंड करना है। ओपन सिलेंड्रिकल टैंक को डायमेंशंस क्या है, एक तो बेस रेडियस होती है और एक दूसरा कौन सा होती है, हाइट होती है। हाइट ऑफ ओपन सिलेंड्रिकल टैंक whose circular base whose radius is x centimeter। Find the dimension so that the quantity of metal sheet required is minimum। जो भी मेटल शीट हमें लगानी है उसको बनाने के लिए वो कम से कम होना चाहिए, मीन्स वो मिनिमम होना चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। The quantity of metal sheet required is minimum। So जो टोटल सरफेस एरिया बनने वाला है वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मींस मेटल शीट से हम क्या बनाने वाले हैं, वी हैव टू मेक द ओपन सिलेंड्रिकल टैंक whose base is what, circular form। So total surface area of the open cylindrical tank is minimum and that is our f of x। So let us construct this। This is open cylindrical tank whose base is what, circular form। x be the radius of that circle। x जैसे हम हर बार r is the radius कहते हैं, यहाँ पर हम x करेंगे because we have to consider f of x। That's why x is a radius, base radius, and h be the height। So by logically हम कह सकते हैं कि कम से कम मेटल शीट कब लगने वाली है, जब उसका बेस रेडियस एंड हाइट इक्वल होंगे। बेस रेडियस और हाइट इक्वल होगी तो सबसे छोटा ओपन सिलेंड्रिकल टैंक बनेगा। सो वी रिक्वायर मिनिमम मेटल शीट, क्वांटिटी ऑफ मिनिमम शीट। इट इज लॉजिकली आंसर बट वी हैव टू सॉल्व बाय डिटेल्स इन मैक्सिमा मिनिमा वे। सो लेट अस सी द दिस इज x be the base radius, h be the height, v be the volume and this important s be the total surface area of cylindrical tank। So he has given volume is pi a cube। So v is equal to actual what is the volume of open cylindrical tank, volume is equal to pi r square h। Pi r square h, here r is not radius, x is radius, that's why pi x square h, pi x square h।
So pi x square h is given pi a cube, pi cancel, h is equal to a cube by x square. So this is the height, a cube by x square. Now total surface area of that open cylindrical tank is what? पहले 2 pi r h and area of circle pi r square. So 2 pi x h plus pi x square. यहाँ पर हमने x रेडियस किया है. So be careful. हमें जनरली मेंसुरेशन के फॉर्मूले में अगर रेडियस आता है तो हम r ही कंसीडर करते हैं. So यहाँ पर हम x किया है, उतना ही सिंपल चेंज है. So 2 pi xh plus pi x square, that is the total surface area of open cylindrical tank. Is it clear? So यहाँ पर h हमने फाइंड किया है a cube by x square, x cancel, s is equal to 2 pi a cube by x plus pi x square. This is s, that is the surface area. And we have to consider that is the fx, function of x, because minimum quantity of metal sheet is required. Minimum quantity of metal sheet is required means that is the function. And that function is 2 pi a cube by x plus pi x square. So यहाँ पर एक ही वेरिएबल होना चाहिए x, बाकी h था तो हमने ऊपर से रिप्लेस किया है. So 2 pi is constant, a is constant, इसका डिफरेंशिएट करना है. 2 pi a cube constant, the derivative of 1 by x is minus 1 by x square. Pi as it is, derivative of x square is 2x. ये उसका फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया है. इसका सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे? जब डबल डैश ऑफ x माइनस 2 pi a cube, ये तो कोएफिशिएंट एज इट इज रहेगा, वो कोएफिशिएंट है. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर? जैसे the derivative of 1 by x is minus 1 by x square, वैसे 1 by x square का डेरिवेटिव minus 2 by x क्यूब होता है. It is a d by dx. d by dx derivative. Derivative of 1 by x is minus 1 by x. ये तो फॉर्मूला है. 1 by x square into minus 2 by x क्यूब आता है. आप सॉल्व करके देखिए. सो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है minus 2 by x क्यूब. x का डेरिवेटिव 1, 2 pi कांस्टेंट कोएफिशिएंट एज इट इज. ये उसका डबल डैश हो गया. ये अपनी प्रोसीजर है. दिस इज कॉल्ड द एल्गोरिथम ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. So ये that becomes minus into minus plus 4 pi a cube upon x cube plus 2 pi, that is f double dash of x. ये अपनी मैक्सिमा मिनिमा की फर्स्ट स्टेप होती है. उसके बाद फॉर मिनिमा कौन सा फंक्शन है? दैट मेटल शीट इज रिक्वायर्ड. f dash of x is equal to कितना लेना है? हमें 0 लेना है. So this is f dash of x. ये f dash of x यहाँ पर लिया, वो भी 0 लिया. आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहां पर दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. माइनस 2 पाई ए क्यूब प्लस 2 पाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0. सो ये माइनस 2 पाई ए क्यूब राइट ला प्लस 2 पाई क्यूब. 2 पाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 पाई क्यूब. 2 पाई कैंसल. एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब मींस ऑब्वियसली एक्स इज इक्वल टू व्हाट? ए. दिस इज व्हाट? बेस रेडियस ये बन गया है. सो जो भी ए की वैल्यू आ गई हम कहां पर रिप्लेस करेंगे? डबल डैश में. बिकॉज हमें वो भी दिखाना है कि मेटल शीट रिक्वायर्ड कम से कम लगना चाहिए, मींस सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आना चाहिए. इफ सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव द फंक्शन इज मिनिमम. इफ सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव द फंक्शन इज मैक्सिमम. दैट इज द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. x इज इक्वल टू ये, यहां पर रिप्लेस किया f डैश ऑफ x डबल डैश में. ये डबल डैश यहाँ पर क्लियर है. 4 पाई a क्यूब बाई a क्यूब कैंसल. 4 पाई प्लस 2 पाई 6 पाई. 4 पाई प्लस 2 पाई 6 पाई इज पॉजिटिव वैल्यू. इट इज ग्रेटर देन 0 मींस ऑब्वियसली बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम. yes is minimum. Yes is what? Total surface area. So when x is equal to a, what will be the height? Height is a cube by a square. A cube by a square is a. It is clear when height and base radius are equal, then the total metal sheet is required minimum. It is obvious. जब height और radius same हो जाएंगे तो वो बहुत कम मेटल शीट लगने वाली है वो ओपन सिलिंड्रिकल टैंक बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए. सो हेंस द क्वांटिटी ऑफ मेटल शीट इज मिनिमम
when radius is equal to height is equal to a centimeter, that is our answer. Okay, so very clear. So this also one of the important, बहुत बड़ा solution है. So इसके आगे ऐसे सब solution है, पहले मैं सॉल्व करके रखूंगा, फिर मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर सकता हूँ. Is it clear? So we'll take more example. Now next example, example number 16. So I will solve this example with you. That is perimeter of triangle is 10 centimeter. Triangle का perimeter दिया है, means 3 sides given है 10 centimeter. If one of the side is 4 centimeter, उसमें से एक side 4 centimeter है, कौन सी भी एक side 4 centimeter है? What are the other 2 sides of the triangle? उसके the remaining 2 sides की length कितनी है? For its maximum area. So ये सबसे important. Area of triangle is maximum. So area of triangle के बहुत सारे फॉर्मूले, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? When 3 sides are given means sum of all sides is given and one of the side is given also. So here let ABC be a triangle. A triangle ABC. This is A side, this is B side, this is C side. P be the perimeter, that is P is equal to A plus B plus C, which is 10 centimeter. That is P is equal to 10 centimeter. And एक साइड उन्होंने दिया है, कौन सी भी एक साइड, ए सी ए बी, कौन सी भी एक साइड. सो लेट सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. उसमें एक साइड मैंने 4 सेंटीमीटर कंसीडर की. सी कंसीडर करो, ए कंसीडर करो, बी कंसीडर, डजंट मैटर, कौन सी भी एक साइड आपने 4 सेंटीमीटर ली है. देयरफॉर अगर P 10 है, so therefore A plus B plus C is equal to 10. A plus B plus 4 is equal to 10. उसमें से C कितना है? 4 है. So therefore A plus B is equal to 6. This indicate B is equal to 6 minus A. This equation first. इक्वेशन क्या है? फर्स्ट. राइट. एबीसी ट्राइंगल लिया, पी उसका पेरीमीटर है, पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस बी प्लस सी. सो पी दिया उन्होंने 10 सेंटीमीटर, एक साइड 4 सेंटीमीटर दी, दैट इज सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. सो ए प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 10, मींस ए प्लस बी इज इक्वल टू 6. उसमें से बी इज इक्वल टू 6 माइनस ए लिखो और ए इज इक्वल टू 6 माइनस बी लिखो टू बी सेम. Now then delta be the area of triangle. इसको हम डेल्टा कहेंगे. डेल्टा फॉर्मूला, डेल्टा बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एस बी द सेमी पेरीमीटर. That S is equal to P by 2. Therefore, S is equal to 10 by 2. This indicate S is equal to, और नीचे लिखता है यहाँ पर मैं, therefore S is equal to 5 centimeter. Delta be the area of triangle, S be the semi perimeter of triangle. So S is equal to P by 2. Semi means half, semi circle, half circle, semi perimeter, half perimeter. P by 2. So P is 10. So 10 by 2 is 5 centimeter. That is yes. Now we know that. ये formula, that is delta is equal to under root pause. Delta is equal to S into S minus A. S minus B
एस माइनस सी। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हम डेल्टा स्क्वायर करेंगे इसका। डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। डेल्टा स्क्वायर किया, एस की वैल्यू मालूम है, सी की वैल्यू मालूम है, सो डेल्टा इज इक्वल टू देयरफॉर डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एस इज 5, 5 इंटू 5 माइनस ए इंटू 5 माइनस बी, बी इज व्हाट, बी 6 माइनस ए, 6 माइनस माइनस प्लस ए, 5 माइनस 4, यहां पर बी की जगह में क्या लिखा, 6 माइनस ए, ये बी निगेटिव है, माइनस 6 प्लस ए। So now this becomes, therefore, delta square is equal to 5 into 5 minus a into a minus 1, 6 minus 5 minus 6 is minus 1 and this is what, 1. 5 minus 4 is 1. now हम इसको multiply करेंगे, delta square is equal to 5 into bracket 5a minus 5 minus a square plus a, minus a square plus a. So delta square is equal to 5 into 5a plus a, 6a minus 5 minus a square. This is delta square. आप डिफरेंशिएट करेंगे, a is the side with respect to side से डिफरेंशिएट करेंगे. So therefore d by dA of delta square is equal to d by dA of 5 into 6a minus 5 minus a square. So इसको 2 delta into d delta by dA, डेल्टा स्क्वायर का डेरिवेटिव का 2 डेल्टा एंड डेल्टा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a कितना होता है, d डेल्टा बाय d. So this equal to the 5 coefficient as it is. 6a का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a is 6, 5 का डेरिवेटिव 0, a स्क्वायर का minus 2. Therefore 2 delta d delta by dA is equal to 5 into bracket 6 minus 2a. d delta by dA is equal to 5 by 2 delta into bracket, यहां से 2 कॉमन लेंगे, 3 minus a, 2 कॉमन लिया, 3 minus a, this 2 and this 2 cancel, d delta by dA is equal to 5 by delta into 3 minus a. ये अपना इक्वेशन फर्स्ट. नाउ अब जो यहां से आगे सॉल्यूशन, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट, सेकंड डेरिवेटिव d2 delta by dA square, सेकंड डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a, d2 delta by dA square. ये तो कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट, 5 by delta, 3 का डेरिवेटिव 0, a का डेरिवेटिव -1. So this is d2 delta by dA square is equal to -5 by delta, which is less than 0. So for maximum area, so area is delta, so delta maximum because second derivative test, so by second derivative test, area is maximum. Therefore for maximum area, f dash of x हमें ये 0 लेना है, so therefore
d delta by dA is equal to 0. 5 by delta into 3 minus A is equal to 0. Therefore 3 minus A is equal to 0. Therefore A is equal to 3. अगर A की वैल्यू 3 आती है तो हमें क्या फाइंड करना है? B फाइंड करना है. Therefore B is equal to 6 minus 3. Therefore B is equal to 3. I think सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर. These are other two sides. ये भी बहुत बड़ा एग्जांपल है. So I will repeat the solution again. This is about area of triangle when perimeter is given, one side is given. Perimeter given, one side given. We have to find other two sides when area is maximum. So same procedure. Delta ये triangle ABC है, उसके 3 sides है. पॉइंट वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड ये होती है, बी की अपोजिट साइड बी होती है, सी की अपोजिट साइड सी होती है. इज इट क्लियर? पी बी द पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड पी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. पी 10 है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10. उसमें से कौन सी भी एक साइड 4 है, आइदर ए कंसीडर करो, बी कंसीडर करो, सी कंसीडर, इट डजंट मीन. मैंने सी कंसीडर किया. सो ए प्लस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 10, ए प्लस बी इज इक्वल टू 6. यहां से बी फाइंड होगा. बी इज इक्वल टू व्हाट? 10 minus 4 is equal, that is 6 minus 8. B is equal to 6 minus 8. Equation first. Now यहाँ पर देखो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ये जो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC उसका सो yes be the सेमी पेरीमीटर, क्योंकि बिकॉज हमें ये फार्मूला मालूम है एरिया ऑफ ट्रायंगल का. So yes be the semi perimeter. Yes is equal to P by 2. 10 by 2 is 5 centimeter. That is yes. We know the formula for the delta area of triangle. Delta be the area of triangle ABC. इसको डेल्टा कहते हैं. ट्रायंगल के जैसे दिखता है लेकिन वो डेल्टा है. डेल्टा एक लेटर है which is used for the area of triangle. वैसे डेल्टा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में हर जगह पर उसका यूज अलग अलग होता है. इट इज एज अ सिंबल, दैट इज डेल्टा. डेल्टा वैसे डेल्टा ये भी है, कैपिटल डेल्टा बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्मॉल डेल्टा. दोनों डेल्टा है हर एक का. इसको हम स्मॉल चेंज के लिए यूज करते हैं, स्मॉल चेंज. इसको हम डेल्टा एज अ एरिया ऑफ ट्रायंगल. दिखने में वो ट्रायंगल दिखता है लेकिन एज यूज एज अ एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो फॉर्मूला इज व्हाट? रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. एस स्क्वायर किया मैंने, डेल्टा स्क्वायर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. एस इज 5, सी इज 4. एस इज 5, सी इज 4, ए इज, बी इज व्हाट? 6 माइनस ए. पूरा कैलकुलेशन किया. डेल्टा स्क्वायर बिकम्स 5 इंटू 6a माइनस 5 माइनस ए स्क्वायर. अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू a. a इज अ साइड ऑफ ट्रायंगल. सो डेल्टा स्क्वायर का 2 डेल्टा, डेल्टा का d डेल्टा बाय d. 5 इज अ कोएफिशिएंट, 6a का 6, 5 का 0, a स्क्वायर का 2a. इधर डिवाइड किया, 2 कॉमन लिया, 2 कैंसिल, 5 बाय डेल्टा, 3 माइनस a. दैट इज इक्वेशन फर्स्ट. दिस इज आवर फर्स्ट डेरिवेटिव, d डेल्टा बाय d. डबल डेरिवेटिव, 5 बाय डेल्टा इज अ कोएफिशिएंट कांस्टेंट है. 3 का 0, a का 1, 5 into minus 1 is minus 5 by delta. in negative आ गई टर्म, d2 delta by da square. d2 delta by da square that becomes negative. by second derivative test, area of triangle is maximum. So for maximum area, first derivative 0 लो. ये टर्म 0 नहीं हो सकती, ये टर्म 0 ली मैंने. So a is equal to 3. a की वैल्यू अब b में रखूं. 6 minus 3 is 3. So 2 साइड 3 सेंटीमीटर आएगा. ये साइड 3 सेंटीमीटर, ये साइड 3 सेंटीमीटर. ये कितना है? 4 सेंटीमीटर. 3 plus 3 6, 6 plus 4 is what? 10. So पेरीमीटर तो उन्होंने 10 दिया था. ये देखो ऐसे एग्जांपल है मैक्सिमम मिनिमा के. बहुत सिंपल है, प्रोसेस सिंपल है, लेकिन आपको ये जो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए. हर एक एग्जांपल में ले रहा हूं, थोड़ा ध्यान से उसको रीड करो, ऑब्जर्वेशन करो, राइट करो, तभी ये समझ में आएगा. दिस वन इज इंपॉर्टेंट. ओके, तीनों एग्जांपल लंबे लंबे थे, पूरे सॉल्व करके दिए. रिपीट करो, उसकी स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, क्योंकि आप उसको जूम करके देख सकते हो. नहीं तो इस वीडियो को डाउनलोड करके देखो, मींस आपको जूम करके आपको इसको देख सकते हैं. ओके, सो टुडे इज इनफ हियर. Some examples are remaining.
So we'll take on next video lecture. So thank you very much. Stay safe and stay home. Thank you.